Uh, in the previous classes, we had seen array list, hash set, and what we had seen is we were storing the single value. But many a times it is required that we have to store some value which must be referenced by some other value. So if we need to store value, we have store multiple value, and those should be related to each other. It means key in a key value pair. Then we must go for the map interface. We'll see the example as well. Let's first see the theory part, that what is the map interface, and how it is structured, what are the different important methods of map interface, as file handling, exception handling, the collection framework. They are very important topics. So you must understand, and you must remember at least the important methods that are available in the interface. So the interface of map contains key. It I think I'll show you the program first. Let me share the complete screen along with you. So this is the map interface, and here we store value in form of key and value. It means the value that is being added inside any map or hash map that implements the map interface. So the hash map contains the value in form of key and value pair. Earlier, what we were using to store the data in the array list or hash set, we were using add method, but here put method is used to store the key value pair inside the hash map. See, this statement explains how the hash map object is created, and the next four statement, it explains how we can store value inside the hash map. And if you want to see what are the value that has been stored inside the hash map, you can just print it directly on the console. Let's check it. You just consider first this output 1, and see, we are concerned with the output 1. Okay, once again I'll run this. So once you run this code, what you see is this output 1 value. We had stored 101, that is key and value, and we can change here the type as well. Suppose if we want to store the value integer, we can do it, but in that case we have to store the value as integer value. See, the error has gone. So we can give any kind of data type here, but if you are not sure which data you are going to use, you can just write object. In that case you can store string, or you can store any integer value. Okay, so how to display the value that has been stored in hash map is just write the hash map value, or what you can do is you can separately print the key value or the values. You can separately key, you can separately print values, or you can print key and value in one go. How we can do that? We'll just check it. See, a hash map, each key that has been added to the hash map, we can get the all the list of the key set by using the key set method of key set method on hash map. So if we'll
write this key set. Let's check what's going to be do here. See, if I want to write what are the key that is available in the hash map, these are the key. The left side value is the key and the right one is value, key value, and it contains the pair of key value. So this is the key set. If I want to print all the key that has been stored inside the map, we can use key set. If I want to see what are the value that has been stored inside the hash map, is using value. Once again I will explain. मैप अब तक हम लोगों ने जो देखा वो था एरे लिस्ट, हैश सेट, ठीक है। उन सब में हम लोग सिंगल वैल्यू स्टोर करते थे, उसमें ऐड करने के लिए या स्टोर करने के लिए हम लोग ऐड मेथड यूज करते थे। नेक्स्ट जो हमारा वो है, अगर कभी ऐसी ज़रूरत आती है कि हमें की वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करना हो या दो रिलेटेड डेटा को स्टोर करना हो, तो हम लोग की वैल्यू पेयर जो यूज करता है कलेक्शन, वो हम लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। बट वी आर सीइंग इज हैश मैप। हैश मैप इज वन ऑफ देम। हैश मैप में अगर मुझे वैल्यू ऐड करना हो, स्टोर करना हो हैश मैप में, तो हम लोग पुट मेथड का यूज करेंगे। अगर सारे हैश मैप के वैल्यू को वन गो में प्रिंट करना हो, आप डायरेक्टली उसके ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर सकते हैं। अगर सिर्फ उसके की को प्रिंट करना है हैश मैप में जो है, आप की सेट का यूज कर सकते हैं। और अगर सिर्फ वैल्यूज जो स्टोर हो रखे हैं वो प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप हैश मैप डॉट वैल्यूज का यूज कर सकते हैं। और ये जो फोर लूप है, ये तो इनहेंस्ड फोर लूप है, इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द कलेक्शन। इसका इस हैश मैप वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं, ये आप पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पर ये है कि हैश मैप के जो मेथड यूज हुए हैं वैल्यूज गेट करने के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको वन गो में ही उसकी की भी चाहिए और उसके वैल्यू भी चाहिए। देन वी कैन यूज एंट्री सेट। ईच एंट्री सेट रिटर्न्स ए मैप एंट्री एंड द एंट्री कंटेन्स द की एंड द वैल्यू। हर एक एंट्री सेट जो है मेरा इंडिविजुअल मैप का एंट्री रिटर्न करता है, और एंट्री इज व्हाट, इट कंटेन्स द की एंड द वैल्यू। तो वो की और वैल्यू हम लोग इसके थ्रू गेट कर सकते हैं। ठीक है, ये था आपका हैश मैप। इसके आगे जाने के पहले थोड़ा और थ्योरी पार्ट हम लोग चेक कर लेते हैं। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट मेथड्स अवेलेबल इन द मैप। बूलियन कंटेंस की, यानी अगर मैं हैश मैप के ऑब्जेक्ट के साथ ये चेक करूं कि ये कंटेन करता है कोई की या नहीं, और उसमें मैं की का वैल्यू दे दूं, की एलिमेंट पुट करूं, तो ये मुझे रिटर्न कर देगा कि वो की अवेलेबल है कि नहीं। सेम थिंग वैल्यू के साथ हम लोग कर सकते हैं। क्लियर मेथड जो है वो पूरे के पूरे हैश मैप को क्लियर करने के लिए यूज होगा, ठीक है, या उस क्लास के ऑब्जेक्ट को जो मैप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे गेट होगा, जी नहीं गेट होगा। की सेट आपने अभी देखा कि अगर जो जितने कीज हैं उसमें अवेलेबल, उसको गेट करना हो तो की सेट यूज करेंगे। वैल्यू कब यूज करते हैं, अगर मुझे उसके सारे वैल्यू को जो उसमें स्टोर्ड है वो गेट करना हो। इज एम्प्टी एज द नेम सजेस्ट, चेक करने के लिए है कि मेरा हैश मैप या जो भी क्लास जो इम्प्लीमेंट कर रहा है मैप इंटरफेस को, वो एम्प्टी है कि नहीं। पुट वैल्यू ऐड करने के लिए होता है, और रिमूव जो है वो किसी की वैल्यू पेयर को हटाने के लिए होता है उस स्टोरेज से। साइज जो है वो बता देगा कि कितने की वैल्यू मेरे स्टोर हो सके हैं। अब यहाँ पे कुछ कॉमन क्लासेस हैं जो इम्प्लीमेंट करते हैं मैप इंटरफेस को। हैश मैप इज वन ऑफ देम, ट्री मैप, देन लिंक्ड हैश मैप। देखिए इन सब का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा डिफरेंस होता है। अच्छा, हैश मैप में क्या, हैश मैप और लिंक्ड हैश मैप में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये आता है कि आप हैश मैप में जिस सीक्वेंस में वैल्यू स्टोर करते हैं वो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है, लेकिन लिंक्ड हैश मैप में आप जिस सीक्वेंस में वैल्यू को ऐड करेंगे उसी सीक्वेंस में आप गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग रेफर करते हैं मैप इंटरफेस डेमो फिर से। ये था मेरा मैप इंटरफेस डेमो। अब इसमें देखिए मैंने जैसे लिंक्ड हैश मैप बनाया, इसी तरह से ट्री हैश मैप, तरीका सबका देखिए सेम ही है। जो ऐसे जैसे आप हैश मैप बनाते हैं वैसे ही ट्री मैप बनाएंगे,
वैसे ही लिंक्ड हैश मैप बनाएंगे। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग वन बाय वन इसके सारे मेथड्स को इसमें चेक करते हैं हैश मैप में। और उसके आगे का काम आपको, ये जब फाइल दूंगा जब मैं, तो ट्री सेट का आपको खुद सारे मेथड इंप्लीमेंट करने हैं जो लिस्ट आउट हो रखे हैं स्लाइड्स में। स्लाइड भी शेयर हो जाएंगे। ठीक है, स्लाइड आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो अभी सपोज मेरे पास ये है। अच्छा, इतने में पहले आप लोगों में से किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ बताइए। एक मिनट, मालिनी का मैसेज आया है कि वो वेट कर रही है उसमें। ठीक है। अभी आप मुझे इतना बताइए कि ये जो हैश मैप मैंने एक्सप्लेन किया, ये हैश मैप क्या है, और हैश मैप का मैंने अभी एक प्रोग्राम दिखाया। ठीक है, पहले इस स्लाइड में देख लीजिए। इस स्लाइड में कहीं आपको कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन आपके एंड से है, आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग इस प्रोग्राम पे चलेंगे, फिर आप इसमें पूछिएगा अगर कोई दिक्कत होगी तो। पहले स्लाइड्स इस थ्योरी पार्ट को देख लीजिए और बताइए कि क्या यहाँ आपको कोई कन्फ्यूजन है। बी अटेंटिव इन क्लास। अगर आपको ज़रा भी कन्फ्यूजन है कुछ, आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। सेट की सेट क्या है? की सेट देखिए, अभी इसमें एग्जाम्पल ने हम लोगों ने देखा था कि अगर मुझे हैश मैप के अंदर कौन कौन से की हैं, की मेरे कौन से हैं, 101, 102, 103, 104। ये जो लेफ्ट फर्स्ट पैरामीटर जो है वो की होता है, और सेकंड पैरामीटर जो है वो वैल्यू होता है। तो अगर मुझे इस हैश मैप में जो मैंने स्टोर किया है, मुझे केवल ये लिस्ट चाहिए, फर्स्ट वाले की लिस्ट चाहिए कि मेरे इसमें कौन कौन से की है। तो उसको गेट करने के लिए मेरे पास की सेट यूज होता है। देखिए, कीज इन द मैप, आपके मैप में कौन कौन से कीज हैं उसके लिए। ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक बार ये बताइए कि इसमें फर्स्ट पैरामीटर और सेकंड पैरामीटर को क्या कहते हैं। फर्स्ट 104 की है और जॉर्ज वैल्यू है। ठीक है, फर्स्ट वन इज की एंड सेकंड वन जॉर्ज इज वैल्यू। सो देखिए, अब इसमें हम लोग वैल्यू किस तरह से गेट कर सकते हैं। या तो इस हैश मैप में की और वैल्यू जितने स्टोर हैं, हमें एक बार उनको गेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा क्या मेरे पास प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ सकती है कि इसमें कौन कौन से वैल्यू हैं, मैं केवल वो वैल्यू चाहता हूँ। और थर्ड वन क्या हो सकता है कि इसमें कौन कौन से वैल्यू हैं, की से मुझे मतलब नहीं है, कौन कौन से की हैं उनके लिस्ट नहीं देखनी, कौन कौन से वैल्यू हैं मुझे ये देखना है। तो इन तीनों तरीके के लिए अगर मुझे सिर्फ की देखना हो कि कौन कौन से की स्टोर्ड हैं, तो मैं यूज करूँगा कीसेट मेथड। हैश मैप के ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप कीसेट मेथड देते हैं, तो ये आपको ये पूरे के पूरे जितने की इसमें है वो अवेलेबल करा सकते हैं, और उनको आप सिंपली आइटरेट करके प्रिंट कर लेते हैं। अभी देखिए, हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये था आउटपुट 1 जो कि कंप्लीट हैश मैप प्रिंट करा रहा है। सेकंड है आउटपुट 2 जो कि जितने भी कीज अवेलेबल हैं उनको प्रिंट कर दे रहा है ये। इसी कीज को जो है, द लिस्ट ऑफ कीज जो है मेरे पास, इसको मैंने फोर लूप की हेल्प से वन बाय वन करके प्रिंट करा लिया है। ठीक है। अब जैसे की हम लोगों ने गेट किया, वैसे ही वैल्यूज गेट कर सकते हैं कि कौन कौन से वैल्यूज हैं। तो मेरे हैश मैप में कौन कौन से वैल्यूज हैं, आप मुझे बताइए। राम, रहीम, श्याम, जॉर्ज एंड वंस अगेन जॉर्ज। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देना है। हाँ, यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देना है। आप देखिए, दो मैंने सेम की यूज किया है, तो ये क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। की, केवल की अगर सेम है तो ये रिप्लेस कर देगा। वैल्यू जॉर्ज हो, जॉर्ज के अलावा कुछ और रहे, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अगर की मैच कर गई तो वो रिप्लेस कर देगा। ठीक है, देखिए हम लोग अभी एक बार इसको फिर से चेक करते हैं। सर अगर की डिफरेंट हो तो? की डिफरेंट हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये सारे की डिफरेंट है, लेकिन की जैसे ही मैच कर गया, जैसे देखिए ये 104 और 104 ये दोनों सेम है, तो क्या करेगा, लास्ट वन जो है वो प्रीवियस वन वाले को रिप्लेस कर देगा। हाँ, आप बताइए। सर सर वैल्यू अगर सेम हुआ और की डिफरेंट हुआ तो भी चलेगा?
वैल्यू सेम हो, की डिफरेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैटर की का है, की जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ वैल्यू डुप्लीकेट करके। अभी देखिए यहाँ पे मेरा मैंने 105 कर दिया। 105 करने से क्या हो गया, अब मेरे सारे की जो है वो यूनिक हो गए। मैं जॉर्ज जो है मैं दोबारा दे देता हूँ, दो बार क्या, 3 बार दे देता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही आपने रन किया तो ये देखिए जॉर्ज 2 बार हो 3 बार हो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे की जो है वो डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए। ठीक है, दो तीन चीज़ें याद रखनी है। हैश मैप की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है। हैश मैप जो है वो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है। हैश मैप जो है वो आपको डिस्प्ले जरूर हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार ये इसी ऑर्डर में दे। ठीक है, जो स्टोर कर रहा है वो। नेक्स्ट क्या है, इसमें हम लोग जो है कहाँ तक थे हम लोग, हाँ इसमें की वैल्यू पेयर में स्टोर करते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं। इसके कीज को हम लोग गेट कर सकते हैं की सेट के मदद से। वैल्यू के मदद से हम लोग इसमें जितने वैल्यू स्टोर्ड हैं वो हम लोग गेट कर सकते हैं। सिर्फ वैल्यू अगर गेट करना हो तो वैल्यू मेथड यूज करेंगे। अगर सिर्फ कीज यूज कर देखने हो हमें तो हम लोग की सेट यूज करेंगे। और दोनों अगर गेट करने हो तो हम यहाँ पे एंट्री सेट का यूज करेंगे। कुछ चीज़ें आपको इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होगी जो कि याद रखना पड़ेगा, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे अपने आप जो है याद हो जाएगा। वैसे तो देखिए जब आपको अगर पहले से मेथड पता हो, आप जब ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं यहाँ पे देखिए, अगर ये भी पता हो कि एंट्री वाला समथिंग कुछ था, आप जैसे ही करेंगे ऑप्शंस अपने आप आ जाते हैं आजकल आईडी में। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि अगर की गेट करना हो तो की सेट, वैल्यू करना हो तो वैल्यूज, और दोनों गेट करना हो तो एंट्री सेट। उसके बाद आप इनहेंस फॉर लूप का यूज करके उसको आइटरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या वन बाई वन मेथड गेट कर लें। देखिए पहला मेथड है कंटेंस की। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि हैश मैप जो है सर रिया इन लेने बोल रही है, इन ले लीजिए। क्या कोई वेट कर रहे हैं क्या मीटिंग रूम में? यस वेट, सर। मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक, सो अगर अब मैं गेट, मुझे ये चेक करना है कि मेरे पास की नंबर 200 अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो ये अगर मैं चेक करूँगा, ठीक है, तो एक तो मुझे ये मेथड चेक करना है कि ये मुझे क्या रिटर्न करना है, कर रहा है। ठीक है, दूसरा मेरे पास मेथड क्या है, कंटेंस वैल्यू। मैं चेक कर लेता हूँ कि किसी वैल्यू को, मैं इसमें चेक कर लेता हूँ वैल्यूज को। ठीक है, कौन सी वैल्यू को चेक करूँ, चलो मैं चेक कर लेता हूँ सपोज मालिनी। ठीक है, चेक करते हैं इसमें मालिनी है कि नहीं। और एक चीज़ चेक कर लेते हैं कि इसमें जॉर्ज है कि नहीं। ठीक है, अच्छा इसमें एक एक वैल्यू और चेक कर लेते हैं, 101 है या नहीं। ठीक है, मैंने की चेक किया, की अवेलेबल है कि नहीं। वैल्यू चेक किया, वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं। और क्लियर करके चेक कर लेते हैं हम लोग। यस, ठीक है, और क्लियर करने के बाद सिंपली एक बार इसे प्रिंट करके भी चेक कर लेंगे मेरा वैल्यू जो है वो गेट कर रहा है कि नहीं। पहले इतना हम लोग रन करके देखते हैं, बाकी उसके बाद मेथड्स, बाकी का मेथड्स भी यूज करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ तक तो आपने देख ही लिया की गेट करने का तरीका। वैल्यू अगर गेट करना हो तो हैश मैप डॉट वैल्यूज मेथड कॉल करेंगे। की और वैल्यू दोनों यूज करना हो तो एंट्री सेट यूज करेंगे। और हर एंट्री सेट के ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग की गेट की और गेट वैल्यू मेथड कॉल कर लेंगे। कंटेंट्स की चेक करेगा कि मेरा ये अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। ठीक है, मेरे पास देखिए ये है,
अभी एक बार इसको रन करके देखते हैं। मैं एक काम करता हूँ, लास्ट जितने भी हैं उन सबको मैं एक बार कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। सो आप में से कोई बताना चाहेंगे इसका आउटपुट क्या आएगा? सब 200 वाला फॉल्स आएगा, 101 ट्रू, फिर उसके ठीक है, बाद और नीचे सेकंड जो लास्ट टू है? पहले वाला फॉल्स, उसके बाद ट्रू। ठीक है, ठीक है, अभी हम लोग चेक करते हैं एक बार, ठीक है। देखिए, इसे भी एक बार हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं, की सेट और वैल्यू को। ठीक है, अब मेरा सिर्फ ये प्रिंट होगा, और द लास्ट वन इज दिस। इसको करके देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज फॉल्स, ट्रू, देन अगेन फॉल्स एंड फॉल्स, ठीक है। आप निरूपम ये बताइए कि लास्ट टू जो है वो फॉल्स क्यों आया? मेरे पास यहाँ जॉर्ज है तो अवेलेबल, प्रिंट किया है मैंने। निरूपम, वैष्णवी, यस सर। वैष्णवी, सर क्योंकि इसके पहले, सर हाँ सर, इसके पहले हम उसको क्लियर कर चुके हैं, इस वजह से ये फॉल्स है। ठीक है, ठीक है, चूँकि हम लोगों ने इसे क्लियर कर दिया था इसलिए लास्ट टू जो है वो फॉल्स आ रहे हैं। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताइए, वैष्णवी, अभी भी दोनों फॉल्स आ रहे हैं, क्या रीजन सेम ही है? सर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अगर मैं इसे हटा दूं, क्या ट्रू आएगा उसके उस केस में? नहीं सर, क्योंकि ये नहीं हो, वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो ये एग्जिस्ट फॉल्स नहीं ही कर रहा है, आएगा। ठीक है। ऑल्दो इट वाज जी ए सर। वेरी बेसिक क्वेश्चन, बट जस्ट आई आस्क कि चीज़ें क्लियर हो रही है कि नहीं, मेथड्स क्लियर, मतलब मेथड्स आप लोग कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। खैर, तो हम लोगों ने अभी देखा कि कंटेंट्स की, कंटेंट्स वैल्यू एंड क्लियर मेथड ये क्या काम करते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने ये देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। क्लियर तक देख लिया ये तीन। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट गेट। अगर मुझे गेट करना हो डायरेक्टली, मेरे पास हैश मैप का ऑब्जेक्ट है, मैं वन बाय वन आइटरेट नहीं करना चाहता हूँ, मैं गेट करना चाहता हूँ कोई वैल्यू, तो मैं क्या प्रोवाइड करूँगा? मैं की प्रोवाइड कर दूंगा। सपोज मैंने 101 प्रोवाइड किया, तो ये क्या करेगा, उस 101 से रिलेटेड, उस 101 से रिलेटेड जो भी वैल्यू है, ठीक है, उस 101 से रिलेटेड जो भी वैल्यू है ये सिंपली प्रिंट कर देगा, ठीक है। की सेट का अभी हम लोगों ने देख लिया, एम्प्टी का चेक कर लेते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। एम्प्टी चेक करते हैं एंड देन रिमूव चेक करते हैं। पुट भी देख लिया हम लोगों ने ऊपर, पुट के थ्रू ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर ऐड करते हैं। एक काम करते हैं, इसमें रिमूव करने की कोशिश करते हैं। हैश मैप से हम लोग रिमूव करते हैं, कौन सा रिमूव करते हैं? हम लोग रिमूव करते हैं 101, ठीक है। तो एक बार रिमूव करने के पहले प्रिंट कर लेते हैं, और एक बार रिमूव करने के बाद प्रिंट कर लेते हैं, देन विल सी कि क्या चेंजेस आए इसमें, ठीक है। लेट्स रन इट।
देखिए आउटपुट 1 तो सबसे टॉप का है। अभी देखिए गेट 101 पे मेरे पास राम है, यानी अगर मैं किसी की को पास करूंगा हैश मैप के ऑब्जेक्ट में, इट विल रिटर्न द रिलेटेड वैल्यू, सो इट हैज़ प्रिंटेड राम। अभी मेरे पास हैश मैप जो है वो क्लियर नहीं है, इसमें वैल्यू है अवेलेबल, दैट्स वाई इज एम्प्टी मेथड रिटर्न फॉल्स। Before removing any key value pair, I had printed the hash map, so it has returned 101, 102, 103, 104 and 105. But in the next line itself, we had removed the key 101, so the related value also removed, and now it has just printed the remaining key value pairs, that is 102, 103, 104 and 105 and their related value. Okay, so these were the method which were available in the map interface and array list. These two are very important. You must consider this, and you just remember how to perform operations in these two. Others are also important, but these two, I think, in real world scenario it will be helpful, it will be very helpful for all of you. The hash map, the linked hash map and then array list. Okay, so this was up to about map interface. Before going deeper into the interface, let's see if you have any confusion in this. अब तक आप लोगों ने जो भी इसमें ऑपरेशंस देखे, उन ऑपरेशंस में अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है, आप प्लीज पूछिए। सर अगर हम लोग की को डिलीट करते हैं तो वैल्यू भी डिलीट हो जाता है क्या? यस, क्योंकि हैश मैप जो है वो वैल्यू ऑफ की, हैश मैप स्टोर्स की एंड वैल्यू पेयर, सिंगल वैल्यू स्टोर नहीं करता है। तो अगर की को डिलीट कर दिया तो इसका जो रेफरेंस है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। ठीक है, दैट्स वाई इट रिटर्न्स की वैल्यू। बेसिकली ये इट्स वन पैकेट, आप इसको ऐसे समझिए कि ये एक सिंगल पैकेट है। इनमें से इसको मैंने रिमूव किया, ये ऑटोमेटिकली उसका रिलेटेड वैल्यू को भी इसमें से हटा देता है। ओके सर। सर हम लोग मतलब अगर हम लोग चाहें तो हम लोग की को छोड़ सकते हैं और वैल्यू को डिलीट कर सकते नहीं हैं। नहीं, वो स्ट्रक्चरल चेंज हो जाएगा ना इसका। इसका स्ट्रक्चर ही यही कहता है कि इसमें वैल्यू हमेशा की वैल्यू पेयर में रहेंगे, यानी रहेंगे तो दोनों, नहीं तो कोई नहीं। ओके सर। क्योंकि और अगर सर हम लोग अगर उस तरह की वैल्यू स्टोर करनी होगी तो हम लोग एरे लिस्ट यूज करेंगे। और सर हम लोग जो भी इनपुट लेंगे, मतलब हम जो भी गेट कर रहे हैं, वो हम लोग हमेशा स्ट्रिंग्स के फॉर्म में ही एंटर नहीं नहीं करेंगे नहीं, सर। जरूरी नहीं, ये तो सबसे पहले ही दिया था। देखिए आप यहाँ पे जो भी आप टाइप देंगे, ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे जेनेरिक टाइप दे दीजिए, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे दीजिए। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, अब ये इंटीजर भी स्टोर कर सकता है, ठीक है, अब ये स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जेनेरिक भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्पेसिफिक दे दिया, जैसे अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिक दे दूं कि नहीं मुझे इंटीजर ही चाहिए, तो उस केस में आपको इंटीजर वैल्यू ही पास करनी पड़ेगी। अगर आप इंटीजर की बजाय स्ट्रिंग पास करेंगे तो ये देखिए कंपाइलर एरर दे देगा आपको। ठीक है, तो आप किस तरह का वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो आपने टाइप कास्टिंग क्या की, क्या टाइप यूज किया आपने, ओके सर। इस पर डिपेंड करता है जो आप यूज कर रहे हैं, ये टाइप जो है। नेक्स्ट चलें स्लाइड। यस। ठीक है, देखिए अब कुछ स्पेशल सिनेरियोज को भी हम लोग कलेक्शन में कंसिडर करते हैं। देखिए कलेक्शन का मतलब ये नहीं कि हम लोगों ने जो है सिर्फ एरे लिस्ट पढ़ लिया, हैश सेट पढ़ लिया, उससे रिलेटेड जो एक दो हैं वो आपने खुद से एनालिसिस करके स्टडी कर ली, या मैंने मैप पढ़ लिया, मैप के ऑपरेशंस देख लिए, नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कलेक्शंस, चूँकि कलेक्शन एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके अलग अलग सिनेरियोज को भी हमें स्टडी करना चाहिए। और मेरे क्लास लेने का तरीका भी यही है कि आप पहले बेसिक सीखिए, थ्योरी समझ लीजिए, अगर आप उसको समझ गए तो उसके बाद फिर एक लेवल ऊपर का देखिए। ठीक है,
तो एक बार ना आप कई बार हमें ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है कि एरे लिस्ट में जो वैल्यू है उनको हम लोग सॉर्टिंग कर पाएँ। ठीक है, जैसे देखिए अभी अगर मुझे मैंने एरे लिस्ट चेक पिछली बार बताया था, एक बार एरे लिस्ट का सॉर्टिंग चेक कर लेते हैं कि अगर मेरी ज़रूरत पड़ी इस तरह की। आप इस पे ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पे फाइल्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे ग्रुप पे। ठीक है, अगर मेरे पास कोई एरे लिस्ट हो उसमें मैंने कुछ वैल्यूज ऐड किए हैं। ठीक है, अभी हम लोग एक बार इसको प्रिंट करते हैं विदाउट सॉर्टिंग। मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने अभी आप इसको भूल जाइए सॉर्टिंग वाला ये जो है। ठीक है, तो अभी मैं अगर इसको प्रिंट करूँ एरे के तो मुझे किस तरह से मिलेंगे, जिस ऑर्डर में मैंने इंसर्ट किया ये सेम टू सेम ऑर्डर में मुझे ये रिटर्न कर देगा। बट समटाइम्स इट इज़ रिक्वायर्ड। अब जैसे कि आपको मान लिया इसमें आपने किसी का रोल नंबर ऐड किया, ठीक है, या फिर कोई ऐसा नंबर ऐड किया, कोई कुछ भी ऐसा जो बाद में आपको ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि मुझे असेंडिंग में चाहिए, या जिस इसमें आपने मार्क्स स्टोर किया और आपको ये गेट करना हो कि जिसका हाईएस्ट मार्क है पहले मुझे वो चाहिए, या जिसका लोएस्ट मार्क है मुझे वो चाहिए। तो उस केस में आपको इसकी सॉर्टिंग करनी पड़ती है। सॉर्टिंग करने का तरीका क्या है, हम लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जो है वो कलेक्शन क्लास प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ये देखिए एक बार थोड़ा सा इसके डीप में चलते हैं। ठीक है, ये मेरा कलेक्शन क्लास है, ये इनबिल्ट क्लास है ये। ठीक है, इस क्लास के अंदर समटाइम्स आप लोग चेक किया कीजिए इस तरह से भी उसके जो कोडिंग्स है ना, उसको इस तरह से जाके चेक किया कीजिए कि ये क्या करता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है एक सॉर्ट मेथड है बना हुआ। ये सॉर्ट मेथड बेसिकली क्या करता है कि जितने भी नंबर्स हैं इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है। डिसेंडिंग में कैसे करेंगे वो भी देखेंगे हम लोग। पहले एक बार हम लोग असेंडिंग ऑर्डर का देख लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में करेगा। ठीक है, एक बार चलते हैं कि शॉर्ट मेथड देखते हैं कि ये शॉर्ट मेथड क्या करता है। सी, यहाँ पर ये सॉर्टिंग करने का काम करता है। ठीक है, आप लोग एक बार जाके इसको स्टडी ज़रूर कीजिएगा कि ये क्या करता है। हालांकि जनरली इसको कोई करता नहीं है इतने डीप में जाके, बट आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं है। आपको ये याद रखना चाहिए कि कलेक्शंस का जो सॉर्ट मेथड है उसके अंदर अगर मैं कलेक्शन पास करता हूँ मेरा, तो वो उसको सॉर्ट कर देगा। ठीक है, पहले एक बार हम लोग सॉर्टिंग के पहले का चेक करते हैं और एक बार सॉर्टिंग के बाद का चेक करते हैं। ये देखिए पहले मेरा क्या था वैल्यू 5281, कोई ऑर्डर नहीं, जिस ऑर्डर में इंसर्ट किया उसमें ही। बट उसके बाद हम लोगों ने सॉर्टिंग करने के लिए क्या किया, कलेक्शंस क्लास का यूज किया और उसमें सॉर्ट मेथड यूज किया। तो इसने मुझे मेरे जितने भी वैल्यू हैं वो सॉर्टिंग करके दे दिए। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि सर अगर मेरे पास मल्टीपल वैल्यू जो हैं वो सेम ही हो, फिर क्या होगा, तो बिल्कुल वही काम करेगा जो मैथमेटिकल ऑर्डर में आप करते हैं। ठीक है, जो दो इक्वल वैल्यू हैं उनको वो साथ मिला देगा बस। ठीक है, ये तो हुआ कि अगर इसने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करना है। तो अगर ऐसी ज़रूरत पड़ गई मुझे कि मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो मेथड वही यूज होगा सॉर्ट। बस आप जो है यहाँ पे एक ये प्रिंट कर देंगे कि रिवर्स ऑर्डर में मुझे चाहिए। आप बस एक एक्स्ट्रा पैरामीटर ऐड कर देते हैं कि मुझे जो क्या चाहिए वो रिवर्स ऑर्डर में चाहिए। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर जैसे ही आप एक एक्स्ट्रा पैरामीटर देते हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको रिटर्न कर देगा वैल्यू। ठीक है, ये देखिए ये था, इसने क्या किया, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ए बी सी डी में से सबसे पहले डी वाले को, फिर सी वाले को, फिर बी वाले को, फिर ए वाले को रिटर्न कर दिया। ठीक है, कई बार आपको ज़रूरत पड़ती है कि नहीं मुझे लेंथ के हिसाब से दे दीजिए कि किसमें कम कैरेक्टर है, किसमें नंबर ऑफ़ कैरेक्टर ज़्यादा है, उसके बेसिस पे हर एक वैल्यू जो है उसके लेंथ के बेसिस पे चाहिए, तो फिर आप कंपेयरिंग यूज कर सकते हैं। ये सब आप यूज करते करते प्रैक्टिस करते करते अपने आप आ जाएगा आपको। ठीक है, इनको बाई हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक और याद रख लीजिए कि हाँ सॉर्ट मेथड का यूज करते हैं। अब रियल वर्ल्ड सिनेरियो में हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं कलेक्शंस को। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो सकता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में अगर आपको प्रोडक्ट यूज करना है और हर प्रोडक्ट जो है वो किसी एक प्रोडक्ट आईडी से मैप्ड है, यानी प्रोडक्ट आईडी उसकी की हो गई और प्रोडक्ट का नेम जो हो गया वो उसका वैल्यू हो गया। ठीक है, जैसे मान लो 101 पे प्रोडक्ट आईडी पे मेरा टेलीविज़न है,
102 पे मेरा मोबाइल है, 103 पे टैबलेट है। तो इस तरह की वैल्यू अगर इन्वेंटरी मैनेजमेंट में मुझे स्टोर करना हो, तो प्रोग्राम में उसको टेम्पररली स्टोर करने के लिए मैं हैश मैप का यूज करूँगा। ठीक है, ये सब सिनेरियो हैं। तो दीज आर द थिंग्स टू डू एज असाइनमेंट। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स जो है हम जहाँ यूज कर सकते हैं कलेक्शन का, ये आपको करके लेके आना है, इसके ऊपर प्रोग्राम आपको बना कर आना है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, ज़रूरी नहीं कि आप वन गो में सक्सेसफुल हो जाएं, बट हाँ कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ये स्लाइड्स आप लोग को अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आप जो है कोशिश कीजिएगा कि इनके ऊपर जैसे इसने गाइडलाइन दिया हुआ है, इसमें वैसे ही आप लोग प्रोग्राम बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जब तक आपके पास थ्योरी आ गई, खाली थ्योरी से काम नहीं चलेगा, आपको थ्योरी के ऊपर प्रैक्टिकल वर्क भी करना होगा, तभी आप ज़्यादा सीख पाएंगे। तो एक एग्जांपल हो गया जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा गया है कि आप कैसे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट ग्रेड हो गया, स्टूडेंट ग्रेड को आप हैश मैप में कैसे स्टोर कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ को। लाइब्रेरी कैटलॉग हो गया। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें जो है आप करके देखिएगा। बेसिक क्लास का कंसेप्ट जो है वो आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि आई थिंक बेसिक जावा जो आप है आप लोग ने वो पढ़ ही लिया है। बेसिक जावा में क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में आप लोग को बता दिया गया होगा। यहाँ पे क्लासेस, ऑब्जेक्ट एंड कलेक्शन, बस इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसको आप स्टडी कीजिएगा और जैसे जैसे सीक्वेंस में ये कह रहा है करने को, उस हिसाब से आप प्रोग्राम बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं बनता है तो फिर इसको हम लोग जल्दी ही डिस्कस करेंगे। एक बार इस कलेक्शन में जितने भी वर्क टू डू आपके बताए गए हैं, ये सारी चीज़ें जो आपको कही गई है करने को, वो आपको तो करना ही है। आपको अगर नहीं कर पाते हैं, तो वो आने वाले कमिंग क्लासेस में ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी कि कैसे करना है। लेकिन उससे पहले आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मेरे करने से मुझे फ़ायदा होगा, आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, सो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल जो है वो आपको स्टडी करना है। इन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से रिलेटेड वर्क में अगर किसी को कन्फ्यूजन है, प्लीज़ पूछिए। आई अंडरस्टैंड कि फेस्टिवल टाइम है, फेस्टिवल टाइम में आप लोग क्लास करने में थोड़ा सा लग रहा होगा, हर एक के घर में फेस्टिवल चल रहा है, लेकिन पढ़ाई तो देखिए करनी ही है। ठीक है, तो आप कोई नहीं, आप ट्राई कीजिएगा पहले अपने इनसे इन चीज़ों को। अगर दिक्कत होगी तो फिर पूछिएगा या ग्रुप पे आप मैसेज कीजिएगा। ठीक है, जैसे कल आई थिंक किसी स्टूडेंट ने मुझे ब्लड डोनर और एक्सेप्टर के रिलेटेड मैसेज किया था, तो कुछ कुछ बातें डिस्कस हुई। कुछ बातें डिस्कस करने के अलावा मैंने उसे ये कहा कि आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद इसे क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट इट वाज गुड थिंग कि उसने अप्रोच करी कि सर मुझे दिक्कत हो रही है, आप मुझे बताइए कि कहाँ पर मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, तो कुछ चीज़ें, कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए थे, बाकी का उसे कहा था कि आप ट्राई कीजिए, विल डिस्कस इट इन सेमिनार। ठीक है, इवन कि उसने ये भी कहा कि वो प्रेजेंटेशन बना के पहले शेयर कर देगा, उसके बाद मैं चेक कर लूँगा। वन गो में सेमिनार के पहले एक बार चेक कर लूँगा कि प्रेजेंटेशन में कहीं कोई कमी है कि नहीं। ठीक है, सो देखिए एक और चीज़ है, जब भी आप कोई काम करते हैं उसमें हमेशा गुड प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए। गुड प्रैक्टिस क्या कहता है कि आप हमेशा जेनेरिक यूज़ कीजिए, सॉरी, आप हमेशा जेनेरिक यूज कीजिए। ठीक है, इसके अलावा हमेशा सही कलेक्शन टाइप यूज कीजिए। अगर आपको रैंडम एक्सेस करना हो, एरे लिस्ट यूज कीजिए। अगर आपको यूनिकनेस चाहिए तो आप हैश सेट यूज कीजिए, जो कि प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोगों को बताए गए हैं। हमेशा कोशिश कीजिए कि जब भी आप एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ इनिशियल कैपेसिटी जरूर दीजिए, जो भी आपके अनुमान से हो पाए। बाकी अगर आप उससे ज़्यादा वैल्यू उसमें ऐड करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रो कर लेगा, उसकी दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेटिव फॉर लूप की बजाय आप इन्हेंस्ड फॉर लूप, इस तरह के लूप का यूज किया कीजिए। ठीक है, हमेशा कलेक्शन पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के पहले, कलेक्शन के वैल्यू वगैरह को गेट करने के पहले चेक कर लीजिए कि वो इम्प्टी तो नहीं है, उसके अंदर वैल्यू कुछ है या नल पड़ा हुआ है वो। ठीक है, बल्क ऑपरेशन करना हो अगर, तो ऐड ऑल मेथड्स वगैरह की यूज कीजिए। सो दीज आर द गुड प्रैक्टिस जो कि कलेक्शन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं ये, कि जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है। ठीक है, ये स्लाइड्स आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे, ये आप लोग एक एक करके देख लीजिएगा। ये इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने जानबूझ के दिए हैं ताकि आप जब भी स्लाइड्स को देखें तो आप एक बार ब्रश अप हो जाइए इसके ऊपर कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है, एक सेट और एक लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है।
ठीक है, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस पिक किए गए हैं वहां से जहां पर कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये सारे लोगों के इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं। मैं अभी कुछ और क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराऊंगा जो कि रियल टाइम इंटरव्यूज के रहेंगे। हैश सेट, ट्री सेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, हैश मैप और हैश टेबल में क्या डिफरेंस है, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस है, कौन सा जो है फास्ट और रैंडम एक्सेस के लिए यूज होता है, इसके अलावा आइटरेटर इंटरफेस किस लिए यूज होता है, कलेक्शंस क्लास अभी हम लोगों ने देखा था, कलेक्शंस क्लास का यूज करके हमने सॉर्ट मेथड उसका यूज किया था और एरे लिस्ट के एलिमेंट्स को हमने सॉर्ट किया था, असेंडिंग में भी किया था और डिसेंडिंग में भी किया था। फेल फास्ट और फेल सेफ, ये समझते हैं इसको, ठीक है। फेल सेफ और फेल फास्ट बेसिकली क्या होता है कि अगर आप कलेक्शंस को जिस समय रीड कर रहे हो, अगर एट द सेम टाइम, समझिएगा इस चीज़ को, अगर आप कलेक्शन जो आपका है उसको आप रीड कर रहे हैं और उसी टाइम पे आप उसमें वैल्यू ऐड करने की कोशिश करते हैं या फिर कलेक्शंस को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, उस केस में ये क्या होगा, ये फेल फास्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करेगा, कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन, यानी एट द सेम टाइम कंकरेंसी में आप जो है मॉडिफिकेशन भी कर रहे हैं और रीड करने का काम भी कर रहे हैं। और फेल सेफ कलेक्शंस कौन से हो गए, वैसे कलेक्शंस जहां आप रीड करने के साथ साथ आप उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल इसका देखते हैं, फेल फास्ट और फेल सेफ डेमो का। ठीक है, सपोज मेरा लिस्ट है, ठीक है, समझिएगा, सपोज मेरा लिस्ट है, लिस्ट में मैंने वैल्यू ऐड की, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये तो जनरल जैसे चलता था वैसे चल रहा है, ठीक है। आइट्रेटर मैंने यूज किया ताकि इसके हर एक वैल्यू को मैं आइट्रेट कर सकूं। अब मैं जब आइट्रेट कर रहा हूं, ठीक है, तो आइट्रेट करने के टर्म में ही मैं इसमें कुछ वैल्यू भी ऐड कर रहा हूँ, उस केस में ये क्या करेगा, ये कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन देगा। क्यों, क्योंकि लिस्ट जो है वो अलाउ नहीं करता है कि आप जिस समय आइट्रेट कर रहे हैं उसी समय आप इसमें मॉडिफिकेशन भी करें, ठीक है। एक बार पहले नीचे वाले को हटाते हैं कोड को और इसको चेक करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपका आ गया चेक फॉर मॉडिफिकेशन, ये कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन आ गया लिस्ट में। अभी हम लोग एक काम करते हैं, अपन इसको अब कमेंट करते हैं, ये था फेल फास्ट का, और ये है फेल सेफ का। फेल सेफ के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, कंकरेंट मैप, कंकरेंट हैश मैप जो है वो अलाउ करता है। ठीक है, हम लोग कंकरेंट हैश मैप इसके लिए प्रोवाइड, अगर हमें ऐसी ज़रूरत पड़ रही है कि जिस समय हम डेटा रीड कर रहे हैं उसी समय उसमें और वैल्यूज़ भी ऐड हो सकते हैं, तो उस केस में हमें कंकरेंट हैश मैप यूज करना चाहिए, ठीक है। एक बार कंकरेंट हैश मैप में भी हम लोग वही काम कर रहे हैं, उसको रीड करने की कोशिश की है एंड वाइल रीडिंग हम लोग इसमें कुछ वैल्यू और ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। कंकरेंसी सेम टाइम में रीड भी कर रहे हैं, मॉडिफाई भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने किसी भी तरह का एक्सेप्शन नहीं दिया, ठीक है। यही अगर मैं कंकरेंट हैश मैप की जगह सिंपल हैश मैप यूज करूँ, ठीक है। देखिए, जो सिंपल हैश मैप है वो फेल फास्ट होता है, वो फेल सेफ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास ऐसी रिक्वायरमेंट है कि वाइल रीडिंग यूजर कैन मॉडिफाई द वैल्यू इट्स वैल्यू ऑल्सो, सो व्हाट विल यूज कंकरेंट हैश मैप, ठीक है। कंकरेंट हैश मैप जो है वो फेल सेफ होता है, यानी आप दोनों ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये था फेल सेफ एंड फेल फास्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है जनरल इंटरव्यू में। ठीक है, अभी कलेक्शन जो है वो आपका फिनिश्ड नहीं हुआ है। कलेक्शंस को फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और कलेक्शंस के ऊपर बाकी ऑपरेशंस हम लोग कब देखेंगे, जब हम लोग जावा के न्यू फीचर जैसे कि स्ट्रीम, लैम्डा एक्सप्रेशन, फंक्शनल इंटरफेस, ऑप्शनल क्लासेस, उसके बाद स्टैटिक मेथड इन द इंटरफेस, जब ये चीज़ें देखेंगे हम लोग जावा के न्यू फीचर में, उस समय कलेक्शंस के बारे में थोड़ा और डीप में स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए आपका कलेक्शंस का जो क्लास था वो यहाँ तक था। ठीक है।